Hey everyone. Hello, good evening, Swagat. Very good evening and a very warm welcome to everybody here in this session. I hope you all are keeping well, your preparation going good, and whatever you guys are doing is falling in the place. Everything should fall in the place. Namaste. Shubha Sandhya. Very good evening. Hey, Shreyansh, Diptark, and so many members are already live here. I'll start the session in 2 minutes. I'll just drop the link of the session in the. आप ऊपर आ गए हाँ जी in the groups so that people can join. Okay, pre-live class, expected weightage of subjects. That is my expectation. Very good evening. Already done. Already done. Great. Okay. That is good. Done. Hanji, is it lagging for everybody? No lag? Okay, cool then. Hanji, the number of live members will be many, so might possible that I'll not be able to see your chats for a while. बहुत सारे लाइव लर्नर्स होंगे तो आप लोगों के चैट्स हर एक के पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, आई स्टार्ट द सेशन इन 5 मिनट्स. आई टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स बिफोर दैट. आप लोगों ने कोर्सेज कवर कर लिए होंगे, नहीं किए तो कर कर रहे होंगे. आप लोग अपने रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे. जैसे भी है, अगले 2 महीने रुकना नहीं है. आई थॉट यू कॉल्ड यश पटेल ऑल्सो इन दिस डिस्कशन. क्यों ऐसा क्यों? अच्छा, AIR 19. अरे मेरा खुद का भी था यार. ये देखो, लेटेस्ट वाला याद रहता है ना. लास्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट. यस सर, आप 12 साल पहले लेके आए थे, अभी आपका क्या? आप हिस्ट्री बन गए. वी आर लिविंग इन करंट डेज, है ना? यस. हाँ. लेजेंड को लेजेंड बनाने वाले कौन है? आप हैं. आपका रिजल्ट मैटर करता है. नाउ it, my me being, a good teacher will not depend on me or how I will teach. Me being a good teacher will depend on you now, that how you will perform. A great, a mentor or a coach will be judged based on their results, final results. तो कोई भी स्पोर्ट्स कोच है, अगर वो स्पोर्ट्स कोच अपने टीम को वर्ल्ड कप या कोई बड़ा टूर्नामेंट जिता देगा, तो दैट कोच इज गुड. अदरवाइज कोच इज फाइन. ओके, हर कोच कोचिंग तो करता ही है, देता ही है. लाइक दैट वे इट इज. Okay, first of all, whenever I will give my prediction, okay, uh I'll tell you one thing, guys. One second. That I have made similar kind of video last year also. Similar kind of. And as you all know, from similar kind of video, 59 out of 85 marks were exactly from the same prediction which I have made. Ganesh had attended. Good, Ganesh. Nice. In fact, if somebody wants to watch this video, this is the video. अगर कोई देखना चाहता है वीडियो, ये लो. You can go ahead and analyze also.
Seriously, I'm telling you. Rishabh, no, this will be on Unacademy platform itself only. This will not be uploaded on YouTube. So this was last year's video which I have made on YouTube, and from that video, expected topics, whatever I have decided, I have selected 59 out of 85. If you could solve 5 marks also or 4 marks also from whatever aptitude was there, you could have easily got 60 plus. But when I say I am expecting a question from this topic, you say, yes, sir, I know this particular topic. It doesn't guarantee that you will solve the question in GATE correctly from that topic. Okay, it's a very big truth. I am revealing about myself also and about you guys also. So if I'm predicting that, okay, 59 marks question have been asked from those topics only which I have selected, and you guys, if going through those topics only, let's say, still you will not get all 59 marks out of it. Sir, why? Just because when you solve the question in GATE, it's not compulsory. ये compulsory नहीं है कि you will be able to solve the question correctly. कंपल्सरी नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चन करेक्ट बन जाएगा. सर, देन हाउ कैन आई डू दैट? हाउ कैन आई इंप्रूव इट? So my dear student, to improve it, you will have to minimize what? What kind of mistakes? Silly mistakes. You will have to increase speed and accuracy, and you will have to remember each and everything by multiple revision, so that what happens, you can remember the topics, you can solve the tough questions through the accuracy, and you will not have any kind of silly mistakes, and still you will have the solutions, correct solutions. Okay, okay. Chali. So let's begin the session with the last year's analysis. So last year's analysis was like this way. I have predicted that COA cash marks, 4 marks questions were there, which I have actually predicted that one question will come from access time and one question will come from mapping. It has come. Pipelining, 2 mark question already there. COS, whatever I have predicted, COA, C programming, tree, data structure, algorithm, whatever I have predicted, those questions have come. In fact, one person in the class, one student asked, that's a topic limit se aayega? Yes, 1 mark. Correct predictions were like that way. All 59 marks. Compiler, CN graph. That is the history, but just wanted to tell you. See, this is what the note we could have. Specific topics we have discussed, and approximately 59, actually 59 marks. This is the correct. I am not making it 60. I am making it 59 just because accurate was 59. No fake data, nothing. I have dropped a link. You can just watch that particular video and you can understand this was, yes, this was without aptitude. With aptitude, no prediction at all. Aptitude is highly unpredictable. उसमें कोई prediction नहीं कर सकता. मैं तो नहीं कर सकता. I can't do that. I can't do that. That is my incapability or something. No, it is like, it is truth. It is the fact that nobody can predict from which topic which question can come. It's not having any kind of pattern or something. In the technical topics, there are few things which are every year asked. That's why. Chalo, let's go with the past data now, and let's go with the topics where we can expect the questions. Okay, chaliye. So COA, look at this. I have brought analysis of GATE 2015. 3 papers were there in 2015. This was I have written this one. मैंने ये पेपर लिखा था 2015 का. Okay, and it was good one, second set, and 3 papers they have conducted that year. IIT Kanpur, just because they have started online exams, and online exams, they were not having infrastructure to conduct so many papers in single day. That's why now the infrastructure is better in the colleges. That's why single set. You guys are lucky, single set only. But look at this.
Look at this last few years paper, instruction chapter, last year no question was there, but I am expecting one question this year. एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन चैप्टर से आएगा पक्का, one question this year. I do have a 50-50% chance for this. I don't know, but I'm not sure about this, that this year they'll be asking a question of this. 50-50% chance I am having. 50-50. Maybe a question may come, may not come. I am not sure this time from this one. Pipelining, 100% there will be a question, and I don't know why, but I am feeling, gut feel है कि tough question आएगा pipeline से. There will be a tough question, not very tough, but there will be a tough question which will take time, and that I'm feeling like it may come from the instruction pipeline. Cycle से on के question आते हैं ना, वहां से some instruction sequence may be given like that way, a question may come. Instruction pipeline, that too a tough question. I am expecting a tough question from here. I am expecting one more, of course, that should be there. Cache memory से तो question आएगा ही आएगा, medium level का I am expecting this time. But I am expecting 2 questions from cache. I'm feeling, I don't know why, but I'm feeling that COA weightage will be lesser than expected. I don't know if it can be true or not, but if you are expecting 8 or 10 marks or 12 marks, it may be 6 to 8 marks or something, not more than that, as I am expecting. I don't know. That is not true, but that's my sense, that's my feel, that this year there will be a question lesser from COA. Subject with greatest marks, I don't know. मुझे ऐसा लगता है this time programming will win over everybody. Programming and data structure programming algorithm will win from over everybody. These 3 courses will take a majority of the portion, as I am feeling. Hoping. See, I knew this will come. जो आपको पसंद है वो आप बोलोगे सर इससे ज्यादा मार्क्स आ जाने चाहिए, I will be happy. I knew that. I know that. But that doesn't happen. Gate people will not take your consultation. बताओ आपने क्या पढ़ा, हम उसी से क्वेश्चन बना देते हैं. Nothing happens like that way, right? Okay. So anyway, from COA, I am expecting one question that will be like out of your zone. That one question can be from any topic, but I'm feeling one question will come which you will see and you will feel ये नहीं बनेगा हमसे, ये बनेगा ही नहीं हमसे. I'm feeling like that way. I don't know. Non-linear pipeline, there was only one question till now, Aditi. I don't know if it will be repeated or not. We'll see later on. If I feel like gut feel says that non-linear pipeline can come, then I will take one special class only for that. One class only for non-linear pipeline, its discussion before the exam, 15-20 days before the exam. Okay, one disk question I am expecting this year. One question from here also I am expecting a question may come. Last year also I was feeling एक question आ सकता है, नहीं आया. This time 80% probability that there is a question from disk, and that too access time etc related. कुछ तो access से related disk से question आ सकता है. Next, OS, operating system. Relatively I am feeling easy. Disk with DMA I don't know. Disk का क्वेश्चन आएगा, DMA से आएगा या नहीं आएगा, पहले आप ही का पेपर है. हाँ जी, आप ही का पेपर है, आप ओपनर बनेंगे. I am feeling these many questions only. Maybe a question here and there they may go for. इस क्वेश्चन के लिए वो किसी भी टॉपिक में घुस सकते हैं, I don't know. But I am feeling these are the topics जिनके वो टच कर सकते हैं. From operating system, 100% sure there will be a question from memory management, virtual memory. 100% there will be one question for sure, 2 mark ka, and that particular 2 mark ka question will be moderate level, as far I feel. Moderate level. Okay. Like they'll be giving you some kind of bits and all, multi-level paging का question पूछ सकते हैं,
or maybe they may ask a question like how many bits are there in the logical address, etc., with given information you'll have to calculate. इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम से ज्यादा मुझे बिट्स बाइट्स में ज्यादा लग रहा है. एड्रेस फॉर्मेट जो होता है ना, मल्टी लेवल पेजिंग और सिंगल लेवल पेजिंग का बिट्स बाइट्स फॉर्मेट, हाँ, फ्रॉम देयर दे मे टच अ टॉपिक, one topic, one question. Then one question definitely will be there from process scheduling. शेड्यूलिंग से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है. वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर, वन क्वेश्चन फ्रॉम हियर. हर बार नहीं आता है, कहीं कहीं स्किप कर देते हैं, बट इस बार पक्का आएगा आपके सेट में. ओके, and I'm feeling like they will be asking some kind of average average waiting time or something they may ask. Another feel I do have from process scheduling itself that this particular question may be a tricky one. Like there was a question, if you remember, कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था. ओके, वन इसमें एक SRTF was given and then one value was not given as Z and you had to predict it. That kind of a question they may ask. Some kind of a tricky question. Last year also they have asked RR ka tricky question, some puzzle type question. This year also I am feeling like yahan se ek aur tricky question they'll make. One question, tricky question. Maybe average waiting time or something they'll ask, but some kind of a tricky question they'll ask. Then I am feeling one resource allocation का question आ सकता है. Not deadlock, but resource allocation. Deadlock and resource allocation is there, right? These many resources allocated and etc. based on that. Banker's algorithm may be or may not be, but some resource allocation question may be asked. Maybe deadlock detection, maybe number of resources to have to avoid the deadlock, like that way. Some question may be asked from resource allocation. And one question will be there from synchronization. And I don't know why I'm feeling like that way. You will not make it. You will not attempt it. As per I feel. मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आप अटेम्प्ट करके नहीं आओगे. That will be the talk of the town. Like everybody will be, thinking about it कि ये कैसे बनेगा. सर आप बाकी सब छोड़ो, इसको बता दो क्या करेंगे, इसको बता दो क्या करेंगे. उदयन अभी कह नहीं सकते. इट्स जस्ट द प्रिडिक्शन. मे बी पॉसिबल, मे नॉट बी. प्रज्वल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. दे आर सो कॉन्फिडेंट ऑन देयर मेथड्स. इवन इफ आई प्रिडिक्ट द टॉपिक, same question they will be making, they will still give the question from that topic only with a cunning smile. अब बना के बताओ. They are so intelligent above all of us. डिस्क शेड्यूलिंग मुझे लग नहीं रहा है कि क्वेश्चन आएगा. आई डोंट नो. आई एम नॉट फीलिंग दैट देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम डिस्क शेड्यूलिंग. Maybe. Then in C programming, as per I feel, there will be so many questions. Many questions. More than as you expected. Maybe they'll merge C programming with some other thing like algorithm or data structure or etc. So C programming, they'll try to merge with other. They'll give program for something in C programming, but merging something with others like algorithm or maybe data structure. They'll give C program for data structure, or they'll give C program for algorithm. Like that way they'll merge lot of topics, many questions. It's like there will be many questions from data structure and C programming, algorithm. So I am predicting that there will be at least 25 mark questions. I mean 20 to 25 mark questions only from these three courses: Algo, C and data structure. As per I feel. May be true, may not be true. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन इन तीनों कोर्स से आएंगे.
Uh, Look at this. There will be a question from function and recursion. Of course, I am feeling like there will be a question from statements. Logics होते हैं ना, like this is greater than a, what will be returned like that way, or maybe with some kind of operator, or some kind of symbols, they will merge a lot of statements in single line, and they'll give a question like that way into C division D, ऐसा कोई एक्सप्रेशन वाला बड़ा सा एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चन they'll be asking logically. So I'm feeling question from recursion functions. I'm feeling like there will be a question from statements or logics. There can be a question from the loops also. A loop will be given, you'll be asked that how many times the loop runs, or how many times anything printed, or something. Last year it came also, maybe 2D array I'm not feeling much. Time complexity तो आगे आएगा वो तो आएगा, एल्गोरिदम में देखेंगे. ट्री में दोस्तों, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में ट्री को मैक्सिमाइज कर लो. many questions will come. Pointers, Aditi, this time I am not feeling pointer का कोई टफ क्वेश्चन आ सकता है. They may touch a small easy question, but not the tough one or the tricky one. Here in the tree, BST, everything, tree plus BST, you just see 4 to 5 mark ka question can come from this tree. Number of nodes in different kind of pattern tree, internal node, external node, given number of nodes, how many, like that way, of different kind of structure or tree. If this kind of a tree is given, how many nodes are there in the right hand side of the tree or left hand side of a tree, like that way, there can be a question. Okay. And there can be a question in the tree from binary search tree of some kind of complexity. Binary search tree and complexity, they may merge. So whatever BST complexity questions you guys are having, you may have included. सत्यनारायण, आप बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि MSQ क्वेश्चन कहां से आएंगे, किस टाइप के आएंगे. ये कह सकते हैं 15 में BST बहुत पूछा था गणेश जी, 15 का ठीक है BST पहुंचा था, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बाइनरी सर्च ट्री और ट्री जो है वो बहुत ज्यादा आएगा इस बार, क्योंकि लास्ट 2 साल से बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है, ठीक ठाक पूछा गया है. ट्री BST बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइड भी है, और क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं. 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन तो मुझे यहीं से लग रहे हैं, ट्री से ही आएंगे. AVL मुझे नहीं लगता, काउंटिंग वाले भी हो सकता है आ जाए. सी आई एम फीलिंग लाइक नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ लीफ नोड्स और नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स काउंट करने का क्वेश्चन, और मे बी हाउ मेनी नंबर ऑफ नोड्स विद सिंगल चाइल्ड, डबल चाइल्ड, लाइक दैट वे. सम काइंड ऑफ लॉजिक दे कैन मेक that there is a tree in which left side these many tree as compared to left side, right side is having these many nodes, etc. Kind of logical definition of a tree they may give you, and then based on that you'll have to calculate something, that kind of सर कानपुर हर बार इजी आता है. सपन जी, कानपुर अगर पेपर कंडक्ट करता है इसका मतलब ये नहीं कि कानपुर के टीचर ही पेपर बनाएंगे. पेपर जो बनाते हैं ना, वो बनाते हैं सारी गेट कमेटी के लोग. हो सकता है कानपुर के लोग वेरीफाई करते हो, बस सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है. जो सारे IITs और IISc के जो गेट कमेटी के लोग हैं वही क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ऑल 8 कॉलेजेस. तो इजी टफ का ना IIT कानपुर के कंडक्ट करने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. फर्क इससे पड़ता है कि जिन ने क्वेश्चन बनाए हैं, जो गेट कमेटी के लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, उनमें से कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट हुए हैं. जो सिलेक्ट करता है, हो सकता है उन्होंने 1-2 कोर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे दी, दैट्स इट. बाकी आएंगे क्वेश्चन सारे के सारे कमेटी के लोगों की मर्जी से हैं. मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि सब लोग मिलके ना 60 70 80 क्वेश्चन बनाते होंगे, 80 90.
उनमें से 65 क्वेश्चंस आपको देते हैं कि ये ले लो 65 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे वाले, कुछ टफ वाले छोड़ दिए, कुछ इजी वाले छोड़ दिए, काइंड ऑफ दैट। देखिए टफ इजी कुछ नहीं होता। अगर पेपर टफ है, सिंगल पेपर है, तो सबको कम मार्क्स आएंगे। पेपर इजी है तो सबके लिए ज्यादा मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि सब लोगों ने उसी लेवल की प्रिपरेशन की है। बट आई विल फील पेपर विल बी मॉडरेट, नॉट सो टफ, नॉट सो इजी। इट मे बी लेंदी, बट इन द टफनेस इट विल बी मॉडरेट। इफ देर विल बी टू पेपर्स, एक ही एग्जाम में दो सेट होंगे ना, तो फिर कंपैरिजन हो जाता है कि एक सेट में ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गए और एक में थोड़े लेंदी क्वेश्चन आ गए, बस। लाइक 2021 का पेपर में, 2021 में ऐसा हुआ था, दो पेपर आए थे, पेपर वन, पेपर टू। पेपर टू वाज लिटिल लेंदी, तो उसमें मार्क्स कम आए लोगों को, क्वेश्चंस ज्यादा टफ थे। बट अभी तो एक ही सेट है, सो यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट टफ इजी वाला सेंस नहीं बनेगा यहाँ, है ना। चलो नेक्स्ट, next thing, from here I am feeling like one data structure or algorithm question they may give you from a very big algorithm। कोई ना कोई एक ऐसी एल्गो या एक ऐसा बड़ा प्रोग्राम देंगे जो कि सॉल्व करेगा एक नॉर्मल सी चीज को। लाइक दे मे गिव यू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लेट्स से मर्ज सॉर्ट ओनली, बट दे विल गिव यू, दे विल नॉट राइट दैट दिस इज द मर्ज सॉर्ट और समथिंग, और एक बड़ा सा प्रोग्राम दे दिया, मे बी इसका आउटपुट पूछ ले, या फिर एक स्टेटमेंट मिसिंग करके और पूछ ले कि ये बताओ यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन ना सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम के कॉम्बिनेशन से मुझे ऐसा लग रहा है आ सकता है। एक बड़ा सा प्रोग्राम, बिग प्रोग्राम ऑफ वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, विच विच प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन टू ऑल, बट इट्स इंप्लीमेंटेशन इज नॉट सो मच सीन फॉर यू। कोई भी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक बड़ा सा बिग प्रोग्राम दे मी गिव यू, और वो आपसे पूछेंगे कि ये बड़ा प्रोग्राम करता क्या है, या फिर आपको एक स्टेटमेंट मिसिंग देके और पूछेंगे। आकाश ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हमेशा आसान होता है। अगर सी प्रोग्रामिंग सीखी है तो आपको कुछ नहीं करना है, गधों की तरह सोचना है। एक स्टेटमेंट उठाओ, उसको रन करो, दूसरा उठाओ, उसको रन करो, तीसरा उठाओ, उसको रन करो। और इट इज नॉट ओनली फॉर वन, इट इज फॉर एवरीबडी। जैसा सीपीयू करता है वैसा मैं कर दूंगा, एक 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 स्टेटमेंट उठाऊंगा, उसको रन करूंगा। स्टेटमेंट तो समझते हैं, मेरे को बिल्कुल समझते हैं, बस चलाता रहूंगा। हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, बट बन सकता है। ओके, एंड वन क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम स्टैक क्यू। एक क्वेश्चन यहां से स्टैक या क्यू से कोई आ सकता है। एक इजी क्वेश्चन हैशिंग की भी मुझे उम्मीद है। इजी, वेरी इजी काइंड ऑफ इंसर्शन, या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और मे बी नॉर्मल इजी क्वेश्चन हैशिंग से भी आ सकता है। लास्ट ईयर दे हैव मर्ज्ड हैशिंग विद प्रोबेबिलिटी। This time I'm not feeling like they'll be asking hashing with probability, but they may ask a very simple question to you guys, hashing का। Maybe hash function देके और पूछ ले how many slots will be occupied or free or something like that way। Easy question, very easy question। हैशिंग से easy question आने की उम्मीद है। हाँ, काइंड ऑफ लीनियर प्रोबिंग और मे बी चेनिंग और समथिंग, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर गेट टू 2015 में एक क्वेश्चन आया था लोड फैक्टर का, उसी टाइप का एक क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया। सो इट विल बी लाइक इजी क्वेश्चन, 1 मिनट में आंसर वाला। शुभम, जस्ट वेट फॉर टुमारो आई एम गोइंग टू अनाउंस द सेम। 2:45 PM पे यूट्यूब पे सेम सेशन रखा है मैंने, इसी चीज का सीरीज लेके आने वाला हूं। ठीक है, चलिए परमिटेशन ना आ जाए प्राची जी, मुझे उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो श्योर है, विद समथिंग और अदर कॉम्प्लेक्सिटी का ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का। देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्सिटी, किसी चीज की भी कॉम्प्लेक्सिटी। मे बी दे आर कनेक्टिंग इट टू एनी अदर कोर्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, or they'll be giving some kind of C program or something, but there will be one question from complexity, maybe two, one or two question from here.
And I don't know why. A hard level, not hard level, easy. Asymptotic complexity, yes. I am feeling like there will be a question from untouched topic. जहां से रेयर क्वेश्चंस आते हैं ना, वहां से कोई एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है एल्गो से. Maybe untouched, like since long, if they have not asked question from maybe dynamic programming or that PNP or something, polynomial, non-polynomial, maybe greedy approach or something, there can be a question which they have not asked from long. There can be one question. Untouched topic से एक क्वेश्चन आ सकता है. समथिंग इट कैन बी एनीथिंग. अनटच्ड है काफी टाइम से, जिसके क्वेश्चन नहीं आए हैं वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है. चलिए, बिफोर वी गो फर्दर, आप सब लोगों ने फ्री मॉक टेस्ट जो अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है उसके लिए एनरोल किया या नहीं किया? AIMT के लिए एनरोल किया या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, ये रही लिंक. इसके लिए अगर कोई कोड लगता है तो ये लगा देना. फ्री मॉक टेस्ट है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, एब्सोल्युटली फ्री है. और ये मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूं कि आप ये सारे लिखेंगे लाइव. चाहे आपकी प्रिपरेशन आधी भी हो तो भी लिखेंगे, बट लाइव लिखेंगे. मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूं पर्सनली, क्योंकि क्वेश्चंस मेरी निगरानी में बने हुए हैं. काफी सारे क्वेश्चन तो मैंने ही बनाए हैं और आपको मजा आएगा. टेस्ट लिखने में मजा आएगा. ऑल इंडिया बेसिस पे रैंक पता चलेंगी. और लाइव जब आप देखेंगे तो उसकी लाइव रिपोर्ट मिलेगी. लाइव रिपोर्ट आपके बहुत काम आएगी. कितने क्वेश्चंस आपने कितनी एक्यूरेटली सॉल्व किए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत मजा आएगा. मैं क्यों लिखूंगा बबुआ? आप चाहते हैं कि मैं गेट एग्जाम भी लिखूं, आपकी रैंक खा जाऊं? कब है? अरे ये लिंक दे रखी है ना, देखो डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ. आपको 6 टेस्ट मिलेंगे. दिसंबर में 2 हैं, एक तो 4 को है और एक 18 को है दिसंबर में. और जनवरी में 4 हैं. शायद 2 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट हैं, संडे से स्टार्ट हो रहे हैं. 4 संडे को हैं आई गेस जनवरी में. ठीक है, ऑल 4 संडेज ऑफ जनवरी, है ना? तो आप एनरोल कर दो एंड देन डेफिनेटली यू विल एंजॉय देम. अगर लगेगा तो आई विल एनालाइज दोस टेस्ट आल्सो फॉर यू गाइस. इफ देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी, आई विल डू द एनालिसिस आल्सो ऑफ दोस टेस्ट. चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट है डीबीएमएस. डीबीएमएस में ऑफ कोर्स ये तो एसक्यूएल और लीनियर अलजेब्रा, वन क्वेश्चन फ्रॉम ईदर ऑफ दीज टू. ये तो कंफर्म्ड ही है, होता ही है. एक क्वेश्चन बी ट्री बी प्लस ट्री का भी आएगा. इंडेक्सिंग में बी ट्री बी प्लस ट्री का भी क्वेश्चन आएगा. और एक क्वेश्चन ट्रांजैक्शन से बनेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला. ऐसा मेरा मानना है. सीएस के लिए ऑप्शन नहीं दिख रहा है, टेस्ट के लिए दिखेगा दिखेगा दिखेगा. आप लिंक पे तो जाएं, एक सेकेंड. लिंक पे जाएंगे, आप एनरोल करिए. एनरोल फॉर फ्री करेंगे तो हो जाएगा. ठीक है, अपना नंबर डाल के एनरोल करिए. रिवीजन स्ट्रेटेजी पर एक सेशन आशीष जी ऑलरेडी ले चुका हूं वैसे तो. स्लाइड करके हो जाएगा, कर लीजिए, है ना? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ऐसा फील तो हो रहा है कि इस बार एक क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन से भी बन सकता है. नॉर्मलाइजेशन और एफडीज जो है ना, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बन सकता है. देयर कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, नॉर्मलाइजेशन से. पीएनसी कैसे टाइप? अरे कुछ आपको शेड्यूल दे रखे होंगे और पूछेंगे कि इसमें से कितने सीरियल शेड्यूल निकल सकते हैं, लाइक दैट वे. ऐसा कोई क्वेश्चन, कितने शेड्यूल आपको ये वाला रिजल्ट देंगे या वो रिजल्ट देंगे, काइंड ऑफ दैट क्वेश्चन. बट एक क्वेश्चन पक्का नॉर्मलाइजेशन से तो मतलब ट्रांजैक्शन से आएगा जरूर एक क्वेश्चन, ऐसा मेरा फील है.
ट्रांजैक्शन टॉपिक जो पूरा है सब्जेक्ट, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सीरियलाइजेबिलिटी पे आए या किसी पे भी आए। सपन जी, ईआर मॉडल से क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं और मुझे इस बार भी कोई खास उम्मीद है नहीं कि आ सकता है। तो पूछने में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। डीबीएमएस यार मॉडरेट से थोड़ा ऊपर हो सकता है, मॉडरेट तो रहेगा ही, मॉडरेट टू लिटिल अप टुवर्ड्स हार्ड लेवल। डिजिटल लॉजिक मुझे लगता है पिछली बार से ज्यादा आएगा, ये 4 to 6 मार्क्स के आसपास आएगा डिजिटल लॉजिक, और इजी ही लग रहा है क्वेश्चन इसका। वाई रिलेशनल अलजेब्रा इज ट्वाइस, अरे वो कुछ नहीं, डबल लिख दिया होगा, दैट्स इट, इट्स ओके, वो लास्ट ईयर का प्रेडिक्शन है, नथिंग एट ऑल। सो डिजिटल लॉजिक आई एम फीलिंग लाइक इट कैन बी लिटिल मोर देन यूजुअल, जो लास्ट ईयर था उससे ज्यादा। और मुझे लग भी रहा है कि इस बार इजी इजी क्वेश्चन आएंगे थोड़े ज्यादा, दो से एक दो क्वेश्चन तो इजी आ ही सकते हैं। यहाँ पे ये लोग एक तो क्वेश्चन नंबर सिस्टम का पूछ सकते हैं, इजी वाला या मॉडरेट वाला, और एक कहीं क्वेश्चन ना सीक्वेंशियल या कॉम्बिनेशन में से एक कहीं पूछेंगे थोड़ा सा मॉडरेट या टफ वाला। एमएससी क्वेश्चन सबसे ज्यादा सीएस में ही आते हैं, लगभग 15। हाँ जी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि सीएस वाले ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पैसे भी ज्यादा कमाते हैं, तो फिर फिल्टरिंग आउट जो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। आप कंपैरेटिवली देखो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के कंपैरिजन में सीएस वालों का पैकेज देखो एमटेक के बाद कहां जाता है, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमारे फादर की मंथली इनकम, जो ईयरली इनकम है उसके बराबर तो हमें मंथली इनकम मिल रही है, क्या करें। है एक्चुअली, बट है, मेहनत की, किसी ने पहुंच गए वहां। सो एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट से आ सकता है, थोड़ा सा मॉडरेट से टफ तरफ का, एक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है, और एक के मैप से क्वेश्चन आ सकता है। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन ना थोड़ा लेंदी टाइप रहेगा, कि जिसने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की वो थोड़ा टाइम ले ले, और जिसने प्रैक्टिस की वो जल्दी जल्दी कर दे। यश मुझे उम्मीद कम ही है। चलिए, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन भी मुझे लग रहा है इजी टू मॉडरेट लेवल का आएगा, और इसमें ना एक एमएसक्यू क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% एक एमएसक्यू क्वेश्चन इसमें से आएगा, वो भी थ्योरी वाला। बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन बनाते हैं लोग थ्योरी वाले यहाँ से, है ना। ये थ्योरी याद रखना है, बहुत ही मुश्किल है। थ्योरी वाला एमएसक्यू क्वेश्चन एक एक मुझे लगता है आ सकता है। ऑफ कोर्स फाइनाइट ऑटोमेटा तो लाइक उनका फर्स्ट चॉइस रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग बनता ही है हर बार, बनेगा ही बनेगा। एक डिसाइडेबिलिटी से मुझे लग रहा है इस बार एक क्वेश्चन आएगा, लोगों को बहुत तकलीफ होती है यहाँ से, बट इजी आ सकता है ना। फेवरेट चैप्टर है, हाँ जी। और मुझे आई डोंट नो व्हाई इट इज देयर, बट एक एक क्वेश्चन यहाँ इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो ये लैंग्वेज डिटेक्शन से आ सकता है, कि ये कौन सी लैंग्वेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, बिल्कुल रितु जी, रिकॉर्डेड रहेगा, इस लिंक को आप एक्सेस कर सकते हो, ये फिर से आप सुन सकते हो, मल्टीपल टाइम्स सुन सकते हो। मैथ, मैथमेटिक्स आप इस बार थोड़ा लेवल अप, मॉडरेट प्लस लेवल का ही मानिए। प्रोबेबिलिटी मुझे लग रहा है हो सकता है क्वेश्चन आए ना आए, दूसरे कोर्स से हर बार ये लोग क्या करते हैं ना, लिंक कर लेते हैं, बट मुझे लग रहा है इस बार लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन आएंगे, 1 और 2, लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे।
और इस बार ना कैलकुलस में से नॉट ऑफ लिमिट का क्वेश्चन मुझे फील हो रहा है कि लिमिट को छोड़ के कुछ और दूसरा क्वेश्चन आएगा कैलकुलस में से, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। लिमिट को छोड़ के कोई क्वेश्चन आ सकता है यहां से कैलकुलस में से, मे बी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ जाए, मे बी और कुछ आ जाए। इंटीग्रेशन इज हाईली प्रोबेबल फ्रॉम दिस, मैक्सिमम मिनिमा भी आ सकता है, बट मुझे लगता है लिमिट वाला क्वेश्चन ना आए इस बार। लिमिट को छोड़ के ज्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा फील जो मेरा प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन, आई मीन ज्यादा झुकाव जो है वो इंटीग्रेशन की तरफ है। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है मैक्सिमम मिनिमा का भी आ जाए। इट्स लाइक 60-40, 60% पॉसिबिलिटी है कि वहां से मैक्सिमम मिनिमा 40%, ऐसा है। ठीक है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो लोग कोशिश करेंगे किसी और दूसरे कोर्स के साथ में दें, अदर कोर्स के साथ में मिक्स करें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को। डीबीएमएस के साथ करेंगे, हो सकता है डेटा स्ट्रक्चर के साथ कर दें, लाइक बीएसटी का कोई कॉम्बिनेशन वगैरह दे दें और पूछ लें। कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बो बना के भेजेंगे, पी एंड सी का कॉम्बो किसी और कोर्स के साथ बना के भेजेंगे। हेलो, गुड इवनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन ये देख सकते हो, पार्सर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, दो क्वेश्चन हार्डली इसके बनेंगे, मैक्सिमम दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पार्सर से, एक कहीं और से बन सकता है, कहां से पता नहीं। एमएसक्यू, आई एम नॉट फीलिंग एमएसक्यू आना चाहिए यहां से, बट पता नहीं क्यों, बट एक क्वेश्चन और बन सकता है यहां से, दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन पार्सर का, एक क्वेश्चन कोई भी टॉपिक वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट वन क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम पार्सर। आई हैव ओनली स्टडीड पार्सर। एक क्वेश्चन पार्सर से तो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन पता नहीं, मे बी सिंगल असाइनमेंट स्टैटिक जो भी कुछ होता है वहां से लाइवली एनालिसिस से पूछ लें, या फिर फर्स्ट फॉलो से पूछ लें, कहीं से भी, कहीं से भी एक क्वेश्चन और आएगा। एसडीटी से भी आ सकता है, बट उम्मीद थोड़ी कम है एसडीटी की मेरे को। अनटच टॉपिक जिनसे काफी टाइम से नहीं आया ना क्वेश्चन, वहां से पूछने की ज्यादा उम्मीद है। कंप्यूटर नेटवर्क, ये इसके लिए तो मैं भी हाथ खड़े करता हूं। ये ऐसा कोर्स है जो मेरे लेवल के बियॉन्ड है। दिस इज लाइक कि मैं जो भी कुछ प्रेडिक्ट करता हूं, इसमें से क्वेश्चन बनता ही नहीं है। लास्ट ईयर वैसे कंप्यूटर नेटवर्क का मैंने एक आईपी का बोला था, राउटिंग, वो आ गया था। आईपी एड्रेस से एक क्वेश्चन आया था और एक टीसीपी से आया था क्वेश्चन, 6 मार्क के क्वेश्चन सही प्रिडिक्ट कर लिए थे मैंने, बट स्टिल ये ऐसा कोर्स है कि आप अगर प्रिडिक्ट करोगे कि ये क्वेश्चन आएगा, आपने 98% पढ़ के और बोल दिया कि इसमें से आ जाएंगे, तो 2% में से 4 क्वेश्चन बन जाए। ऐसा कोर्स है, कहीं से भी कुछ भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है यहां से। बट पता नहीं क्यों, बट फ्लो कंट्रोल से यहाँ पे इस बार लग रहा है कि एक क्वेश्चन आए, एक टीसीपी से क्वेश्चन आए, और आईपी एड्रेसिंग मुझे नहीं लगता, पता नहीं इस बार आएगा या नहीं आएगा, बट प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए नहीं आए, एक थ्योरी क्वेश्चन जरूर लग रहा है मुझे यहां से आ जाएगा। कोई तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो देंगे, आड़ा तिरछा, जिसमें आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एक थ्योरी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, कहीं प्रोटोकॉल से रिलेटेड, या फिर कहीं कहीं कुछ रूल्स या कोई कोई कंसेप्ट से रिलेटेड, जिसमें आप बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, ये था कि वो था, इसमें ऐसा होगा कि वैसा होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, काइंड ऑफ। तो एक थ्योरी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आएगा, और बाकी एक फ्लो कंट्रोल, एक टीसीपी से क्वेश्चन प्रिडिक्शन की उम्मीद है। आईपी सबनेटिंग सुपरनेटिंग का मुझे पता नहीं क्यों कम लग रहा है। मुझे कहीं ना कहीं आईपी का फिर भी लग रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। राउटिंग, पता नहीं राउटिंग का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। ऑलरेडी नॉट कॉन्फिडेंट इन सी एन, यश। सब में तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो सर, ये भी नहीं आता, यही पढ़ा है, वो भी नहीं आता, वो पढ़ा है, पढ़ा क्या है?
टेस्ट लिखो, पता चलेगा, है ना, समझ में आएगा। डिस्क्रीट मैथ, ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए स्कोरिंग कोर्स बनेगा। सो मेनी पीपल विल स्कोर अ लॉट फ्रॉम हियर। जिन जिन ने डिस्क्रीट ठीक ठाक पढ़ा है उनके लिए ये हो सकता है स्कोरिंग कोर्स बन जाए, जिनको मैथ अच्छा लगता है। ओके, दैट्स गुड अनु, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ग्राफ थ्योरी, अरे मल्टीपल टाइम्स आ गया, ये क्यों भैया? ग्राफ थ्योरी, डेफिनेटली देयर विल बी टू क्वेश्चंस, आई एम फीलिंग टू क्वेश्चंस ग्राफ थ्योरी से। देयर विल बी टू क्वेश्चंस, सेट एंड रिलेशन वन क्वेश्चन, and functions one question, I'm predicting this time. One question may come from some kind of unpredictable kind of, कि अरे ये कैसे आ गया, ये टॉपिक अनटच था, या सिंस लॉन्ग वी हैवंट सीन लाइक दैट वे, मे बी लॉजिक से अजीब सा क्वेश्चन पूछा जा सके, या फिर यू नो ग्रुप से पूछा जा सके। अच्छा, वो ग्राफ थ्योरी नहीं, ग्रुप थ्योरी था, रियली सॉरी फॉर दिस। सो अनप्रिडिक्टेबल, एक यहां से या यहां से कोई अजीब सा क्वेश्चन आएगा, लाइक अनबिलीवेबल टाइप का क्वेश्चन, कि यार ये क्वेश्चन कैसा आ गया। शुभम, yes, of course, discrete math helps a lot in other courses for sure. एल्गोरिदम का पूरा बेस है ये, बट फीलिंग लाइक एक अनप्रिडिक्टेबल अजीब सा क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी या फिर लॉजिक से आ सकता है। सो दिस इज व्हाट आई फील कि ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें से एक चीज जो मुझे कॉमन लगती है वो ये है कि पेपर विल स्टिल हैव minimum 10 number of NATs and minimum 10 number of MSQs. 20 to 25 NAT and MSQs will be there. So the question paper will take a lot of time. Question paper will take a lot of time, of course. As per I feel, question paper will take a lot of time. You will have to increase your speed now. थोड़ा speed आपको increase करनी पड़ेगी, क्योंकि NATs और MSQs में ना confusion बहुत होता है। कॉन्फिडेंस उतना आसानी से आता नहीं है, इट टेक्स टाइम टू गेट इन्वॉल्व इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, कि हाँ ये क्वेश्चन का यही आंसर आएगा, दिस क्वेश्चन दिस ओनली आंसर। To have that confidence, to gain that confidence, you will have to spend a little extra time, maybe 15 seconds extra per question, or maybe 1 minute extra per question, some questions. So it may possible that question will be easy, but you will take time. शुभम, एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है, मिनिमम 10-10 बोथ, मिनिमम। ओके, 25 तक भी आ सकते हैं, 30 तक भी आ सकते हैं। Till last year they are asking so many MSQs and NAT, and this year also they will repeat the same. Computer science, logically very tough course. See, people feel like कि हाँ courses are easy to understand, but when it comes to implementation, that the question is given and you solve it, लोगों की हवा निकल जाती है। Other branch people says that your schedule, your syllabus is so small, buddy, I can crack GATE computer science any day. And you will say, करके दिखा, बता, आजा। So it's not that paper will be difficult, it will be like paper will be logical and tricky. We don't have mathematical based questions so many. मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, तो क्या होता है ना, ट्रिकीनेस थोड़ी कम हो जाती है। अप्लाई द मेथड, अप्लाई द फॉर्मूला, एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड सॉल्व द क्वेश्चन, दैट्स इट। But our paper, computer science paper, is little logical and tricky. So when the tricks are involved, theoretical things are involved, it's very difficult to predict that answer will be A ki B, answer will be 2 or 15. And that's where the students are lacking. And moreover, NAT MSQ questions are also so many, and because of that it takes time. अगर MCQ क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें ना ज्यादा टाइम नहीं लगते, क्योंकि you can eliminate 3 options immediately. Even if you are eliminating 2, among those 2 you can select one question correctly, one answer more frequently or more quickly. But when 2 options are correct, only one is correct or both correct, that is like, oh ho 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 ho.
probability will be very thin that you will come up with correct answer, and that's why you will spend more time. आपको ना टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है कि if you know I'll have to solve this question, 4 options are there, MSQ question, how many options are correct and not, you will have to think a little more to be confident that no, I'll go with option A and D and C, like that way. And for that, of course, that's why I'm telling you paper will be lengthy. रितु जी, सेकेंड रिवीजन अगर आपका थर्ड जनवरी तक भी खत्म होता है, थर्ड वीक ऑफ जनवरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रज्वल, रिवीजन मल्टीपल रिवीजन चाहिए, मल्टीपल रिवीजन. शुभम, जेई टफ था क्योंकि जेई के टाइम पे आपकी एज आज से 3-4 साल पुरानी थी, छोटी थी. यंगर एज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है. ऑफ कोर्स उतना लेवल नहीं आता अंडरस्टैंडिंग का. एज सुन एज यू गो and grow up, your mental abilities open. तो गेट पेपर seems to be little easier than JEE papers. एक सब्जेक्ट रिवीजन करने में 4-5 दिन जा रहा है. अजय जी, 5 दिन से 6 दिन भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहली बार रिवीजन टाइम लेता है, बिल्कुल लेता है. ओके, एप्रोक्सीमेट वेटेज 10 to 12 marks, 12 marks अराउंड, प्लस माइनस 1-2. प्रज्वल वाला ही प्रॉब्लम है. अभी मॉक टेस्ट शुरू करूं, एक और रिवीजन करके मॉक टेस्ट दूं, एक पूरा अगर रिवीजन हो गया तो मॉक टेस्ट पैरेलल में ले लो. हर तीसरे चौथे दिन, हर फोर्थ डे पे एक मॉक लिखो और साथ में रिवीजन भी पैरेलल ही करते रहो. पता चलता जाएगा कितना याद रहा कितना नहीं. ओहो, ऋषि बोलते मेरा ग्रेजुएशन 22 का है, प्रिपेयरिंग फॉर गेट 24. मैंने एज एन बैकअप स्टेट यूनिवर्सिटी में डेटा साइंस में एडमिशन ले लिया है. डाउट मास्टर्स, डबल मास्टर्स करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है. आईआईटी में एडमिशन होगा तो डबल मास्टर्स हो जाएगा मेरा, आप सजेस्ट कर दीजिए. देखिए ऐसा है, अगर ये मास्टर्स करने के बाद आपको ठीक ठाक जॉब मिल जाती है और गेट 24 का रिजल्ट हम अवेट करेंगे, फिर देखेंगे. ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. इट्स जस्ट दैट यू विल बी लेट लिटिल. There is no any issue if you and your parents are okay with that. There is no any issue. 1-2 साल लेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डबल मास्टर मेरे पास भी है. मैंने तो इतने सालों बाद डबल मास्टर किया, 6 साल के बाद. 2018-20 में एक और मास्टर किया मैंने डेटा साइंस में. विल यू बी ब्रिंगिंग सीओए प्रैक्टिस कोर्स? उदयन, आज ही तो मैंने अनाउंस किया था क्लास में. 15 से स्टार्ट करेंगे ना, 15 दिसंबर से सीओए का 2:45 PM पे. आपका डिजिटल चल रहा है ना, इसलिए नहीं ले रहा मैं. 15 दिसंबर से सीओए प्रैक्टिस कोर्स प्लस पे. हाउ मेनी मैक्सिमम डेज शुड बी गिवन टू ईच सब्जेक्ट रिविजन? Maximum 8 days. If a course is tough for you, you have studied long ago, course is big, you may give 10 days also, but that's like very maximum. But you will have to manage that with other courses. That other course you can revise in 4 to 5 days. Somehow you'll have to manage it. रिवीजन में ओनली डू थियरी इज फाइन, चलेगा. अगर आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले से कर रखी है और प्रैक्टिस करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, तो थियरी रिवीजन कर लो. रिवीजन नहीं किया हूं, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट इजी में 50 मार्क्स आ रहे हैं, मॉक को एनालाइज करूं या सब्जेक्ट रिवीजन करूं? रिवीजन करिए शिवाजी, रिवीजन जरूरी है. मैंने PYQ 2018 से स्टार्ट किया करना, उसके पहले का करना जरूरी है. शुभम जी, 2009 से लेके 22 तक के कर लो, चलेगा. या 11 से लेके 22 भी करोगे चलेगा, कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा. Haven't studied discrete math. अदिति, अगर एक कोर्स है, there is no any issue. One course is still fine. You can cover up revision practice of the completed course and still you can score better. There is no any issue in that. Sure, Udyan. Still left with first revision of 3 subjects. Should I go with important topics only? No. Why? Revision, na? It is just revision, Sakshi. So you can go with revision. First revision, you can finish easily up to 3 weeks. Next 3 weeks, 3 courses revision, first course. No problem at all. After that,
you can go with second revision. If you will go with second revision and you will go with second revision 15 जनवरी तक भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. Then 26 जनवरी तक लास्ट रिविजन हो जाएगा. फर्स्ट रिविजन टेक्स टाइम, सेकंड थर्ड विल नॉट टेक मच टाइम. पीवाईक्यूज के अलावा, आपके कोर्स के अलावा गुड क्वेश्चंस कहां से मिल सकते हैं? दीक्षांत प्लस के मेंबर हो आप, वीदीप 10 को टैग करो प्लस के ग्रुप पे और क्वेश्चन मिल जाएंगे. along with subject test of revised subjects ना. हाँ जी, yes yes yes, बिल्कुल साक्षी जी. should I give full length test every day along with first revision? Kanishk, no. Once first revision is over, after that you write full length test every third or fourth day. In January you will write every third day, not now. अभी रोज रोज लिखोगे, कंसंट्रेशन इतना लगेगा, आप पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे. You cannot write full length test every day. It needs a lot of focus. After that you will not be able to study at all. पढ़ ही नहीं पाओगे तुम लोग. आई एम लीविंग कैलकुलस कंप्लीटली. ज्यादा मार्क्स तो नहीं आएगा ना, एक क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा ज्यादा कैलकुलस से. सोच लो आपका पेपर 98 मार्क्स का ही है, 98 में से 60 लाओगे तो भी चलेगा, 38 मार्क छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा. फिर भी 38 मार्क का प्रोविजन है कि छोड़ सकते हैं. मेरे से भी इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन नहीं बना था गेट में. गेट 2010 में शायद एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, मेरे से नहीं बना था. एक न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन आया था, वो बन गया था. पहले आती थी न्यूमेरिकल मेथड, अब हटा दी. वो न्यूटन राफसन और कुछ कुछ होती थी ना वो वैसी न्यूमेरिकल मेथड इजी आई थी. you remember your marks out of 770 point something कुछ था यार. और किसी का कोई क्वेश्चन बच गया? लिंक ऑफ रिविजन स्ट्रेटेजी बाय यू प्रज्वल. go to the YouTube channel, just go to the YouTube, you just write keyword best revision Vishwadeep. There will be one video, best revision strategy, 1 or 2 months ago I have recorded. You will get it. I have completed only 7 to 8 subjects till now. I have to do start revision now, or also have to give test series. Aditya, you do one thing. Whatever 7 subjects you have completed, or 7 to 8, you start revision of those courses one by one. Easy to tough in the sequence. Whatever course you feel like very easy, go with that. Tough, go with the last. And what you will do? You will go for the revision one by one course. जैसे ही पूरा revision खत्म हो जाए, उसके बाद उसके subject wise और topic wise test लिख दो. Then same to same thing you will have to do. After that what happens? Once your entire revision is over, उसके बाद आप full length test लिखना शुरू कर दोगे. एक रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट लिखो हर तीसरे चौथे दिन, और फिर वापस से रिवीजन स्टार्ट कर दो. 2 से 3 रिवीजन कर लेना सारे सब्जेक्ट्स के, चीजें भी याद रह जाएंगी. I have one doubt. Can I share COA का? Sabyasachi, for that I'll take a special class only for doubts within a day or something. Okay, maybe tomorrow or day after. What about remaining 4 subjects? Aditya, remaining 4 subjects cover करने जाओगे और जो पढ़ चुके हो वही अगर रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे तो फिर दोनों तरफ के नहीं रहेंगे हम. ना तो नए कोर्स से क्वेश्चन बन पाएंगे और ना ही कंप्लीटेड कोर्स याद रह पाएंगे. तो हम मार्क्स कहां से लाएंगे? हम एक काम और कर सकते हैं कि रिवीजन के पैरेलल में एक कोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक दो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर करें टिल 15th ऑफ दिसंबर. जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो पाए 3-4 कोर्सेज के, वो कर सकते हैं. आदित्य, वो कुछ नहीं कर सकते. थियरी बेस्ड एमएसक्यू क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी पड़ेगी. इजी टफ का कुछ नहीं है उसमें, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा. फुल लेंथ टेस्ट 23 दिसंबर से स्टार्ट करना सही रहेगा. तुषांक, उसके पहले ही स्टार्ट कर दो. 15 दिसंबर से एक दो तो लिख ही दो, चाहे पूरा रिवीजन हो ना हो. आई स्टिल लेफ्ट विद डेटा स्ट्रक्चर एंड सी प्रोग्रामिंग. श्रेयांश, इफ रिवीजन यू कैन स्टार्ट, you start revision and practice. If you want to cover up just 10 to 15% time of a day, you can go with the course. Otherwise 80% time you should give only for revision now. If one course is left, that is not a big issue.
आपसे फोन पर बात करनी है, पॉसिबिलिटी है, प्लीज रिप्लाई। अजय जी पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए आपको मुझे सोशल मीडिया पे कहीं मैसेज करना होगा। रानू, आई डोंट थिंक सो यू शुड गो विद दैट। Unacademy platform test series is still fine, better, and there will not be many good questions over there. Other option you can search for. We prefer video during revision. प्राची जी ऐसा है, डिपेंड करता है आपको क्या रिवीजन करने में ठीक लगता है और कैसे आप कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो, प्लस आपको सारी चीजें याद भी होनी चाहिए। सची जी, इफ यू आर लिविंग विद दीज टू, मुझे लगता है अब आप छोड़ देंगे तो भी ठीक रहेगा। आप अगर रिवीजन करें, रिवीजन एक एक कोर्स का करते जाएं और लगता है कि आपको रिवीजन के बाद काफी कुछ याद रहता है, उसके बाद उनके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखें, 2-3 सब्जेक्ट का ऐसे करके देखो। अगर ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आपको मार्क्स आ रहे हैं 70 प्लस और समथिंग, तो फिर आप क्या कर सकते हो, रिवीजन के पैरेलल में इनके दो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट वाले उठा के पढ़ सकते हो। आपको ऐसा लगता है जो कवर्ड कोर्सेस है उनसे ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 50-60 भी नहीं बन पा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज में ही, तो फिर बेटर है कि कोर्स को छोड़ के और कंप्लीटेड कोर्स को ही थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो। एल्गो रह गया है, उसको लीव कर सकते हैं, कर दो। बाकी के जो कोर्सेस हैं, सी एवरीबडी इफ हैविंग द सेम इशू, आई एम टेलिंग यू सेम थिंग। अगर एक दो कोर्सेस बच रहे हैं, 3 कोर्सेस बच रहे हैं, पहले अब जो कंप्लीटेड कोर्स हैं उनका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो। फिर देखो कि मुझे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या 70-75% आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कवर्ड कोर्सेस में ही मार्क्स नहीं आ रहे। अगर कवर्ड कोर्सेस में ही मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो नया कोर्स पढ़ने से आपको कौन से मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे? तो बेटर है कवर्ड कोर्सेस को ही थोड़ा और अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो उनकी, उनके पीवाईक्यूज फिर से देख लो, उनके और टेस्ट लिख के, और जितना ज्यादा से ज्यादा उन्हीं से मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी ये गलती दोहराते हैं हर बार कि कोर्सेस कवर नहीं करते हैं, ठीक है, फिर बाद में बोलते हैं सर हम कोर्सेस कवर करने के चक्कर में रह गए और रिवीजन नहीं किया ठीक से, तो चीजें याद ही नहीं रही, एग्जाम में पढ़ के गए थे जो वही भूल गए, फॉर्मूला याद नहीं आ रहे हैं, कंसेप्ट याद नहीं आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ा आपने इतना पढ़ के और बड़े बड़े नोट्स बनाए उसका। तो आपको कम से कम जो पढ़ा है वो याद तो रहे, रिवाइज तो कर पाए। एक दो कोर्सेज छूट रहे हैं, छूट जाएं, बट जो कोर्सेस आपने कवर किए हैं उनसे अगर आपने अच्छे क्वेश्चन बना लिए, सारे लगभग क्वेश्चन बना लिए क्योंकि आपको सब कुछ याद है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। वरना आप दोनों तरफ से चले जाओगे। अजय जी मेरा नाम आपको पता है, पूरा नाम आप कहीं लिखें, बस सर्च कर लो, पूरा नाम है ये रहा, विश्वदीप गोठी, कहीं ना कहीं तो आप ट्रैक कर ही लोगे। यार शादी में आई हुई ब्लैक सूट वाली लड़की सर्च कर लेते हो सोशल मीडिया पे, मेरे को नहीं सर्च कर पा रहे, कैसी बात कर दी यार। सॉरी फॉर अ बैड जोक। टेस्ट सीरीज एनालिसिस कैसे करूं? जो क्वेश्चन नहीं कर पाया वो खुद से सॉल्व करूं या फिर डायरेक्टली सॉल्यूशन देखूं? आप खुद से जो नहीं कर पाए हैं उसका सॉल्यूशन देखो और चेक करो कि आपने क्या ऐसा यूज किया जिसकी वजह से मिस्टेक हुई। समझ में आएगा, गलती समझ में आ जाएगी, नेक्स्ट टाइम उसको मत करना। विद 8 सब्जेक्ट्स द गुड मार्क्स आर पॉसिबल, ऑफ कोर्स वेरी वेरी पॉसिबल। विद 8 सब्जेक्ट्स यू कैन स्टिल स्कोर 50 प्लस इजीली, इजीली। थोड़ा एफर्ट लगाओगे तो आपको 60 भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि 8 कोर्स आपने किस किस लेवल के पढ़े हैं और उससे क्वेश्चन किस लेवल के सॉल्व कर सकते हो। सब्जेक्टिव टेस्ट एक ही टेस्ट सीरीज का कर पाऊंगा, सब्जेक्ट वाइज ओके। कम टाइम बचा है, फुल लेंथ दो टेस्ट सीरीज का लिख सकता हूं, सही है। एक काम करो ना, सब्जेक्ट टेस्ट अगर एक ही टेस्ट सीरीज का लिखना है तो दो दो लिखो, एक अलग अलग का लिख दो, एक इसका सब्जेक्ट वाइज लिख दो, एक दूसरे का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिख दो। सर प्लीज बताएं कि आपका एक्सपेक्टेड टॉपिक वाला वीडियो कहां से देखूं? यश यही तो है, एक्सपेक्टेड टॉपिक वाला ही वीडियो है ये जो खत्म हो गया है अभी। इसको आप पीछे से वापस देखेंगे तो दिख जाएगा, वापस से 1 घंटे बाद आएंगे तो दिख जाएगा, 1 आवर के बाद में यही वाला वीडियो वापस से देखिएगा, अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डेड आप देख पाएंगे। टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बट टेस्ट अभी क्वेश्चन लग जा रहे हैं। देखिए साक्षी जी ऐसा है,
आफ्टर द टेस्ट लग जाना बहुत नॉर्मल सी बात है। टेस्ट में क्यों नहीं लग रहा है, आपको ये इंप्रूव करना पड़ेगा, और जितने ज्यादा टेस्ट लिखोगे धीरे धीरे इंप्रूव होगा। बस एनालिसिस करते जाओ। हाउ टू कवर PYQs now? If you haven't covered PYQs at all, what you need to do is you will have to go through the course first, revise, and then solve the questions, PYQ questions, like a practice. Then one course revision, then PYQ. Then after that, you can go with the subject wise test, etc. etc. If you have already solved PYQs, then you can just watch them, that what kind of question it is, can you solve that kind of a question or not. A few you may try to solve by yourself, rest you can be. Okay, I think I will close this session for now. Again, I am reiterating, thank you so much guys for all the dedication heads you guys have given. The people who are new here, I'll tell you, there is a provision of dedication head here on Unacademy platform. You will watch more videos over here, and you will get different colored hat over here. Those hats you can give to your favorite educator to whom you are following on Unacademy platform. Then you just click on the hat, you dedicate them with the words you want to tell them. Okay, so just dedicate the dedication heads. These are the heads to be given to you as award, to give them as award to an educator. You can award an educator, yes, with kind of words you want to write. The people who have given me these dedication heads in the recent past, thank you so much for that. And the people who have not given, thank you so much for that too. And All India mock test link is already there. Please enroll for it. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की सीरीज आएगी 4-18 दिसंबर, 8-15 22-29 जनवरी। ये आएगा 4 वीकेंड जनवरी में, 2 वीकेंड दिसंबर में। फ्री मॉक टेस्ट हैं, लिंक दे रखी है चैट बॉक्स के कमेंट में, पिंडअप है, देखिए लिंक दिखी, unacademy.com स्कॉलरशिप AIMT 2023। अरे आप थोड़ा सा उसको स्लाइड करो तो आ जाएगा, स्लाइड करोगे तो आ जाएगा, CS का भी आएगा, आएगा आएगा। एनरोल कर दो। एनरोलमेंट कोड अगर पूछे तो फ्रीली ये लगा देना, फ्री में अनलॉक हो जाएगा। टेस्ट जरूर लिखना, लाइव लिखना, कितनी भी प्रिपरेशन कैसी भी हुई है, ये टेस्ट मिस मत करना। इसमें ना ऑल इंडिया रैंक पता चलेगी, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं ये टेस्ट, उनके कंपैरिजन में आपकी रैंक क्या है। After revision of some questions, I feel things are getting mixed up. What to do? Revision more. You will revise multiple times, things will be cleared. That is called as state of confusion, and that state of confusion will be over once you will revise more. Okay, thank you so much guys, and keep learning happily. Is it fine? First revision cross December. Vishnu ji, try to make it up to first week of January, so that you can have another revision till January 25th or something. Once again, thank you so much. We'll meet you guys again on special classes, YouTube classes, again and again and again. We'll keep meeting you again and again and again. Keep learning happily. Thank you so much. I care for you. I am happy for you if you are doing good. I am tensed for you if you are not doing good. Keep in touch with me. Keep talking to me in the special classes, plus classes, YouTube classes, so that you guys can be on the track. Thank you so much once again. Bye bye.